Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this video, we will do worksheet number 23, class 9, subject mathematics. So as we all know that if a ray stand on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Such a pair of angle is called as linear pair. ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं. Recognition of angles formed by two intersecting lines. Recognition means identification. So हमें identification होनी चाहिए उन angles की जो कि बनते हैं intersecting line से. So children, let us prove the following. देखिए अब हमारे पास क्या भी थ्योरम है जो कि हमें प्रूव करनी है. So if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. So हमें क्या करना है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, वो हमें प्रूव करना है. सो जो हमें गिवन है, देखिए in figure 1, lines AB and CD intersect each other at point O. As a result, two pairs of vertically opposite angles are formed. You can see angle 1 and angle 2, and similarly angle 3 and angle 4. So now prove. जो हमें क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, एंगल इक्वल्स हैं, वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. सो दैट वी नीड टू प्रूव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 3 equals to angle 4. So now you can see in the figure 1, ray OA stands on the line CD. So forms a linear pair, angle 1 and angle 3. So therefore angle 1 plus angle 3 equals to 180 degree. Equation number 1. Similarly, you can see the ray OD lies on the line AB. So angle 3 plus angle 2 will be equals to 180 degree. This is equation number 2. So हमारे पास दो इक्वेशन हो चुकी हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री है. इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री है. अब इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हैं एज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 and equation 2 आर equal, that is 180 degree. So therefore left hand side should be also equal. So angle 1 plus 3 equals to angle 3 plus 2. So आप देख सकते हैं एंगल 3 हमारे पास both sides में है, left hand side as well as right hand side. So angle 3 will be cancelled. So we can say angle 1 equals to angle 2. So similarly आप कह सकते हैं angle 3 equals to angle 4. So this is theorem. I'm repeating, if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Keep in mind. So children, let us solve few questions using our result. So now you can see we have a question in figure 2. Ray OS stand on the line POQ and ray OR and OT are the angle bisector of angle POS and SOQ. आप देख सकते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो रे OR है वो एंगल POS का बाइसेक्टर है. मीन्स POR एंड SOR जो हमारे इक्वल एंगल हैं. सिमिलरली OT जो है वो एंगल QOS और यू कैन से SOQ का बाइसेक्टर है, और हमें इक्वल एंगल मिल रहे हैं YY. सो दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं. सो आप देख सकते हैं. फाइंड द एंगल ROT. हमें फाइंड आउट क्या करना है, ROT की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सॉल्यूशन पार्ट में आप देखते हैं चिल्ड्रन, एज रे OS स्टैंड ऑन द लाइन POQ. देखिए अब रे कहाँ है, OS कहाँ स्टैंड करती है, POQ जो कि स्ट्रेट लाइन है POQ उस पर लाई करती है. सो आप कह सकते हैं एंगल POS प्लस SOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, linear pair. This is equation number 1. And OR is the angle bisector of POS. So आप क्या राइट कर सकते हैं, POR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ROS इक्वल्स टू X हमने लेट कर लिया है. एंड सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, POS को आप क्या राइट कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ ROS. क्योंकि हमें ROT चाहिए, तो ROT के अंदर आपको जो POS का कौन सा पार्ट आ रहा है, ROS वाला पार्ट इंक्लूड हो रहा है. सो हमें ROS काउंट करना है. सो आप राइट कर सकते हैं POS इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ROS. सो ROS को हमने एज्यूम किया हुआ X, सो 2 into X. सो हमें एंगल मिल चुका है, POS इक्वल्स टू 2X. एंड OT इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ SOQ. सो SOT एंड TOQ विल बी इक्वल्स टू Y. लेट अस अज्यूम. सो नाउ SOT विल बी 2 into SOT. सो हमने SOT क्यों लिया, क्योंकि हमें ROT फाइंड आउट करना है. सो हमने SOT वाला पार्ट एज्यूम कर लिया. सो SOT इक्वल्स टू TOQ इक्वल्स टू Y है. सो SOQ विल बी ट्वाइस ऑफ SOT एंड 2 into Y वी कैन से. सो नाउ वी हैव equation 1, equation 2 and 3. So put all the values in equation 1. So आप देख सकते हैं we will have 2x plus 2y equals to 180 degree, and आप 2 कॉमन ले सकते हैं. So that 2 into x plus y equals to 180 degree and x plus y equals to 180.2 becomes 90. So x plus y हमें क्या मिल रहा है, एंगल ROT, that is 90 degree. So this is all about this question. So now we have two questions that we have to solve. So let's move ahead. Now question number 1. The question number 1 is in figure 3, if angle POY
is equals to 90 डिग्री एंड A रेशो B इक्वल्स टू 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C। देखिए हमें क्या गिवन है, एंगल POY गिवन है 90 डिग्री एंड A रेशो B हमें दे रखा है 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो एज वी हैव गिवन एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, देखिए POY कहाँ 90 डिग्री हमें गिवन है, और आप देख सकते हैं रे OP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन XY पे लाई करती है एंड POY हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, सो एंगल POX विल बी 90 डिग्री। सो XY इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल POX इज 90 डिग्री। सो आप देख सकते हैं POX के दो पार्ट हमारे पास है A प्लस बी, सो आप राइट कर सकते हो, और A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो बट हमें गिवन क्या है, A रेशो B गिवन है 2:3, सो हमें मिल चुका है A प्लस बी इक्वल्स टू 90 एंड A रेशो B वी आर ऑलरेडी गिवन दैट इज 2:3। सो नाउ देखिए हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू ऑफ B। हम A की वैल्यू सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है C की वैल्यू, हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें A की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हम क्यों सोल्व करें A की वैल्यू को। सो हम डायरेक्टली करेंगे B की वैल्यू, सो दैट हम लीनियर पेयर B और C का बनाएंगे और हमें वहाँ से क्या मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम B की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। सो B विल बी रेशो, अब देखिए B के लिए हम रेशो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो B इक्वल्स टू रेशो टर्म फॉर B अपॉन सम ऑफ रेशो टर्म इनटू सम ऑफ एंगल्स दैट इज A प्लस बी। सो देखिए आपने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सो एंगल B विल बी, देखिए रेशो टर्म फॉर B क्या है हमारे पास 3 है, और सम ऑफ रेशो टर्म क्या हो जाएगा 2+3, एंड सम ऑफ एंगल्स A प्लस बी कितना हमारा 90 डिग्री। सो 3/2+3 इंटू 90 डिग्री, सो दिस विल बी 3/5 इंटू 90 डिग्री। सो 5 इंटू 18 90, सो 18 5 90, सो 18 इंटू 3 बिकम्स 54। सो हमें B मिल चुका है 54 डिग्री। सो नाउ आपको पता है, देखिए आप देख सकते हैं फिगर में B और C, एंगल B प्लस C एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं जो कि MN लाइन पे है। सो B एंड C आर लीनियर पेयर, हम कह सकते हैं। सो B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। नाउ वी हैव B एज 54 डिग्री, B की वैल्यू हमें पता है पहले से 54 डिग्री, सो आप पुट कर दीजिए यहाँ। सो 54 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड नाउ C विल बी 180 माइनस 54। आपने ट्रांसपोज कर दिया 54 को राइट हैंड साइड, सो दैट इट विल बिकम नेगेटिव। So C will be 180 minus 54 becomes 126. So this is the value of C. So thus you can say angle C equals to 126 degree. So now move ahead for question number 2. In figure number 4, find the value of X, Y and Z. हमें क्या करना है, इस फिगर 4 में जो आपको देख रहे हैं X, Y और Z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हमारे पास PQ एंड RS 2 स्ट्रेट लाइन्स है जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। सो हमें फाइंड आउट करना है X, Y और Z की वैल्यू। सो वी हैव y इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब देखिए y इक्वल्स टू 50 डिग्री हमें डायरेक्टली मिल जाती है क्योंकि ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो y इक्वल्स टू 50 डिग्री एज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो नाउ आप देख सकते हैं एज PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। सो देखिए अब PQ एक स्ट्रेट लाइन है और x प्लस 50 हमारे पास क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। y एज दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 180 माइनस 50, सो x विल बी 130। सो आप देख सकते हैं हमें x की वैल्यू 130 मिल चुकी है और आप देख रहे हैं x और z जो है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो आप कह सकते हैं नाउ z इक्वल्स टू x वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट वी हैव x एज 130 डिग्री, सो z will also 130 degree. So thus we can say x equals to 130, y equals to 50 degree and z equals to 130 degree. So this is all about worksheet number 23. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.